Good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. Great. Hello. Good morning, all of you. Good morning, sir. Yeah, good morning. Now we'll continue. Today we have the enterprise Java topic. Yes. Yes, sir. Yeah. I'm sharing you. We will start. Yeah. सर आपका आवाज लैग हो रहा है सर. Network issue you have. Yes. My voice is clear. Hello. हाँ Yes, सर अभी sir. आया बराबर से आया. Okay. So good morning, all of you. Welcome back, Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Vasai West. TYBSCIT 5th sem. Subject is Enterprise Java. Second unit. Actually, today's we are not doing. We have already done the cookies and session. Now, second unit we have to continue with your working with files, uploading and downloading. That we have to go. Last time we have completed the session listener that we completed, right? Is it Yes, right? sir. Yeah. So today we will continue with your working with files, upload and download. Alone. Great. Okay. So we'll continue with this topic presented by Assistant Professor Bipin PYT. Okay. So let's see the first upon syllables. Okay. See that now syllables. Hello. हाँ, sir. Yeah. See that syllables. 5 minutes. Read that syllables in a second unit. What you have done. Just revise all that thing in the 5 minutes. Request dispatchers, रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस, वो सारी चीजें पहले रिवाइज करो आपने किए कि नहीं किए. Hello, student, revise all that thing after the second unit 1 also. See the first unit also.
If it is anyone, any topic is left, you can clear me, because unit 1 is over. Second unit, last part, it is remain working with files and non-blocking input output. Have you seen? Yes, student. Okay. Yes, student. Have you seen the Yes. unit 1, unit 2? Yes, sir. Hmm. All topics are covered. First up one, there is a understanding with Java EE, what is enterprise applications, advantages, what we can do with the enterprise. Then Java EE, we are using the NetBeans editor. After that, architecture model, containers, that is theory part. After that, we have done servlet and JSP. So servlet हाँ sir. related, why we require the servlet, server side scripting, their life cycle, and working with the servlet file, welcome servlet file. Target side. After that, हाँ. working with the servlet, we are just using the login page, user, how login page we can create and respond. You are successfully logged in simply, not with the JDBC, only simply. When you click on the username, they get a username and successfully log in. That is the working with servlet. And deployment descriptor file, that is DLL file, web.xml file, how it is created and what is the, this is the first unit. And then second part में हम लोगों ने JDBC connective with the database and login page again, but with the JDBC connectivity, Java database connectivity with MySQL. And then after that you can connectivity the servlet, and servlet will response about the JDBC. Is it right? Yes, sir. Yeah, this part we are clear. Now after that second unit, hello. हाँ sir. In second unit, we are clear about the request dispatcher. Request dispatcher, that is the response by the server. What you are requesting your first name, your last name, and that response interface by the server side. And if it is correct, validation part or what else, and then they dispatch the informations as a parameter value, your text value. So that is request dispatcher. The cookies, we said that they store the history. In request dispatcher, in the address bar, they store the information, small information, that is cookies. And session information, whole page, whole information, whole all text box values, all whatever form values, that they store it in the one session. And next time when you open it, so that session will continue, just like your favorite history part, it is there, that is session. Okay, small information is by cookies and one values, and whole information is stored by the whole page is stored by the session. So that is session is used. Now working with files, upload and download. So let's start now. Have you clear? Revise all that thing. That is a necessary. आप एक कदम आगे जाते हो तो पीछे आप लोगों ने क्या क्या पेजेस आपके कंप्लीट हुए हैं, सिलेबस क्या कंप्लीट हुआ है, उसका आपके दिमाग में रिवाइज होना जरूरी है, हर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज. Then only you can give the attempt the exam easily.
तो आपको थोड़ा सा ये नोट्स बनाने के लिए इजी होगा, आपके दिमाग में चलाने के लिए इजी होगा। आपके इसमें अभी सपोज इसमें 15-20 क्वेश्चंस है, तो 20 में से ही 6 आने वाले, उसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. या तो आपके थ्योरी पेपर में यही दिखाई देगा कि व्हाट इज एंटरप्राइज एप्लीकेशंस आएगा, किधर एडवांटेज आएगा, किधर आर्किटेक्चर आएगा, किधर आपका सर्वलेट, जो दैट इज वाई सर्वलेट वी आर यूजिंग इन द, ऐसे कोई लाइफ साइकिल, ऐसा है लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, ड्रॉ द लाइफ साइकिल एंड एक्सप्लेन इट, ऐसे वगैरह सवाल करेंगे। इज इट राइट? क्लियर? या डिफाइन कुकीज एंड सेशन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन द रिक्वेस्ट डिस्पैचर इन एंटरप्राइज जावा। तो ये सारी चीजें ऐसे आपको पूछी जाएगी। दैट्स व्हाई वी हैव टू नो द प्रैक्टिकल, बट थ्योरी में लिखना कैसे है, तो इसके लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो। उसकी तरह एक यूनिट में मैक्सिमम 20 रहेंगे, 20 से ज्यादा कभी जाते नहीं, 20 में से 6 आएंगे तो आपको बेटर है। 6 आने वाले, तो उसमें से अगर 6 नहीं आए, 3 तो आए, तो 3 आए तो 15 मार्क्स फिक्स है आपके। ओके, क्लियर? ओके, चलो नाउ your upload files document. Example of that uploading files. What do you mean that upload? Last time, hello, Hello, sir. yeah. See that now, last time we have done this practical. ये practical हम लोग ने किया था, वो है Servlet performs to fetch the record from a database. हम लोग ने ये database बनाया था, यूजर नेम, यूजर पास, यूजर कंट्री, कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर आप लोगों ने डेटा फेच किया था, एक्सेप्टिंग द डेटा बाय JDBC माई लिसनर से। ये आपने कनेक्टिविटी किया था, ओरेकल के थ्रू नहीं किया था, हम लोगों ने MySQL के थ्रू किया था। या दैट इज द पार्ट वी हैव डन। तो अभी आप लोग को वही चीज, आप लोग को अपलोडिंग फाइल करना है, वो कैसे करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं अटेंडेंस लूंगा। पहले आप लोग अपलोडिंग फाइल का एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, सिंपल एग्जाम्पल है। Here we have to learn the upload file to the server. Upload मतलब क्या? मेरे कंप्यूटर में जो फाइल्स है, मेरे हार्ड डिस्क ड्राइव पे जो फाइल्स है, उसको हम लोग सर्वर में सेंड करना, दैट इज कॉल्ड अपलोड। तो फॉर अपलोड फाइल टू द सर्वर मेथड मस्ट बी पोस्ट, इसलिए पोस्ट मेथड आएगा, गेट नहीं। गेट मतलब रिसीविंग द डेटा फ्रॉम द सर्वर, पोस्ट मतलब सेंडिंग द डेटा टू द सर्वर। इज इट क्लियर? Hello? Yes, sir. Yeah. And then encrypt must be. Hello? Yeah. Then encrypt. Yes, sir. हाँ, आ रहा है ना? Okay. Fine. Then encrypt must be I multi-part form data. Okay, आपका जो डेटा है वो मल्टी-पार्ट में। So multi-part form data in a HTML file. उसके लिए आपको मल्टी-पार्ट में आप लोग HTML फाइल में जनरेट करना पड़ता है वो डेटा। PDF का वो जो भी आपको दिखाई देता है वेब पेज में, वो मल्टी पार्ट एंड फॉर्म डेटा होता है। तो उस फॉर्म डेटा को आप कैसे क्रिएट करोगे? देखो यहाँ पे बताएंगे। इन HTML यू हैव टू क्रिएट दिस HTML फाइल, नॉर्मल HTML फाइल, बॉडी फॉर्म, वहाँ पे एक्शन खाली गो रहेगा, मेथड पोस्ट होगा, एनक्रिप्ट टाइप आपने क्या दिया है? मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इसका मतलब आपका एनक्रिप्शन क्या होगा? PDF फाइल कन्वर्ट इनटू फॉर्म, एंड फॉर्म में आपका PDF फाइल दिखाएगा, बराबर है? नेक्स्ट, उसके बाद सिलेक्ट फाइल। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यू हैव टू यूज देयर इनपुट टाइप फाइल एंड फाइल, मतलब आपको फाइल सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको सिलेक्ट करने के लिए जैसे ओपन बटन आता है, वैसे ही यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसके अंदर इनपुट टाइप और ब्राउज बटन रहेगा। ब्राउज बटन पे आप सिलेक्ट करोगे तो फाइल का लोकेशन इसके अंदर है। तो इट इज अ स्पेशल टाइप फाइल, इट इज नॉट अ टेक्स्ट बॉक्स, it is not a button, it is a like that one text box with the browse button, and then when you click on the browse button they store the location of the file. Is it clear? Hello? Yes, okay, then input type submit button. तो ये हम लोग को डिजाइन करना। चलो let's start now. पहले मैं ये कॉपी नहीं करता, पहले नेटबीन्स में जाता हूँ, नेटबीन्स में फाइल न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ, जावा वेब एप्लीकेशन करता हूँ। देखो फाइल न्यू प्रोजेक्ट जावा वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट, then you can take the any application name, don't mind, next, and then next glassfish server, finish. okay, इसी तरह नेटबीन्स का वेब एप्लीकेशन स्टार्ट। आपके वेब एप्लीकेशन में यहाँ पे index.jsp आता है, HTML नहीं आ रहा, तो आपको अगर index.jsp नहीं करना है, लेना नहीं है, तो आप नो प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू
और हेलो अब चलो इसमें हेलो प्लीज share the way. Okay, fine. Now, see that now new HTML. Okay, now I have the license version. That's why I can mute all वो सब चीजें मैं directly कर सकता. Okay, fine. So आपके इसमें अभी new HTML. अभी यहाँ पे मैं new HTML फाइल्स में क्या दे रहा, इंडेक्स, मतलब इंडेक्स का क्या बना रहा, HTML फाइल में, ठीक है, इंडेक्स HTML फाइल में, और वहां पे सेव कर रहा हूँ फिनिश. देखो आपको HTML फाइल आ गई और ये JSP, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ सर्वर में तो लिखी, यहाँ पे हम लोग को सेट एज अ टेम्पलेट या सेट एज अ यही पेज हम लोग को ओपन होना चाहिए. इज इट क्लियर? ओके, Yes, हेलो, sir. क्या दिस इज HTML और दिस इज JSP. तो यहाँ पे HTML फाइल में हम लोग कंटेंट में ये कॉपी, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, वहां पे हम लोग टाइटल, जो भी टाइटल आपको देना है दे सकते हो. वी कैन गिव द टाइटल अपलोड फाइल. ओके, देन इन द बॉडी कंटेंट वी हैव टू यूज द फॉर्म, और फॉर्म में एक फाइल टूल्स को लेना है और एक सबमिट बटन को लेना है. तो सी दैट नाउ इन द स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको सबको. देखो आप लोग का फॉर्म एक्शंस गो मेथड पोस्ट एनक्रिप्ट टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा. उसके बाद आपको सिलेक्ट फाइल, इनपुट टाइप फाइल नेम, फाइल नेम, ये करके आप लोगों ने बनाया सिलेक्ट फाइल, ये इज वन ऑफ द टाइप. उसके बाद ना, उसके बाद आपका सबमिट बटन. ओके, दिस इज वन सबमिट बटन एंड वैल्यू है उसके ऊपर अपलोड. ठीक है, ये हमारा डिजाइन फाइल होगा. देखते हैं ये डिजाइन फाइल दिखाई देता है. भाई रन कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है डिजाइन फाइल. यस स्टूडेंट, सिलेक्ट फाइल है Yes, sir. यहाँ पे, हाँ. ब्राउज दैट इज अ फाइल इनपुट, देन क्लिक ऑन द ब्राउज. आप लोग फाइल कहाँ से अपलोड करना है, उसका लोकेशंस यू हैव टू सिलेक्ट. सपोज सैंपल चैप्टर, ओपन इट, यहाँ उसको दिखाई देगा एंड देन क्लिक ऑन अपलोड. लेकिन अपलोड के ऊपर आपने कुछ एक्शन दिया है क्या अभी? नहीं. नहीं दिया. तो दैट्स व्हाई अपलोड फाइल किसके ऊपर वर्क होगा, एक सर्वलेट फाइल के ऊपर. तो सर्वलेट फाइल आपने इधर मेंशन किया है क्या, किसके ऊपर क्या करना है, कुछ भी नहीं, sir. नहीं किया हुआ. एक्शंस नॉट गिवन, राइट, एक्शंस नॉट गिवन. Given. अभी देखते हैं एक्शंस में क्या होता है अपलोड में. तो अपलोड में अपलोड सर्वलेट फाइल को आपका ये फाइल्स बनाना पड़ेगा आपको सर्वलेट. ओके, तो वी हैव टू गो ऑन सोर्स पैकेज, right click, new servlet, and we have to create the upload servlet. Okay, then next, उसके बाद add to descriptor, finish हो गया. आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग को वो फाइल्स की कंटेंट लेने हैं. क्या कंटेंट है हम लोग को, बाकी सब कंटेंट ऑलरेडी रहते हैं, खाली ट्राई के अंदर हम लोग को मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट, जो हम लोग ने मल्टी पार्ट दिया है ना, एनक्रिप्ट टाइप बताया मल्टी पार्ट, उसके अंदर न्यू और न्यू करके फोल्डर रिक्वेस्ट में अपलोड करना चाहिए. ओके, न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे डी ड्राइव स्लैश न्यू, दैट इज अ मल्टी पार्ट. अभी यहाँ पे एक येलो कलर का आपको ये यहाँ पे एरर दे रहा है, वो है इंपोर्ट फाइल. क्लिक ऑन, यहाँ पे ये मल्टी रिक्वेस्ट आपका पैकेज है, मल्टी रिक्वेस्ट अपलोड है, मल्टी रिक्वेस्ट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये जावा एस डॉट सर्वलेट फाइल अपलोडिंग का लैंग्वेज फाइल नहीं है. ठीक है, तो उसका हेडर फाइल हम लोग लेते हैं. यहाँ हेडर फाइल है, दिस इज योर हेडर फाइल. व्हाट इज दैट हेडर फाइल, import com dot orally servlet dot multi request. ये नहीं था, इसी की वजह से एरर आ रहा है. तो यहाँ पे हम लोग कॉपी कर रहे हैं एंटर. जैसे यहाँ com dot orally दिखाया हुआ है, तो अभी ये जावा एक्स में नहीं है, com dot orally में है, तो ये फाइल्स अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से एरर आ रहा है. तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल में ये फाइल सर्च करते हैं और इंपोर्ट फाइल में डाल देते हैं. ठीक है, yeah, source, see that now, download the dependency for java form. डाउनलोड कर रहा हूँ, बराबर समझ में आया.
क्योंकि अवेलेबल नहीं है ना। देखते हैं उसके अंदर अवेलेबल था क्या पैकेज में। सोर्स फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है। बिल्डिंग वेब के अंदर वेब आईएनएफ में है क्या। लाइब्रेरी फाइल कॉस्ट ये क्या है, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल क्लासेस अपलोडर। ओके एमडी प्रोजेक्ट के अंदर प्राइवेट फाइल में डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल 1 बिल्ड फाइल सोर्स वेब मेटा वेब इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी कॉस्ट याद है। ठीक है चलो उसको छोड़ दो और हम लोग को डिपेंडेंसी फाइल डाउनलोड करना है। या दिस इज योर फाइल मल्टी रिक्वेस्ट। तो ये कैसे डाउनलोड की जाएगी। या देयर द कॉस्ट बराबर वही फाइल था देखो कॉस्ट डॉट जार दिखाई दे रहा है, यही फाइल है एग्जीक्यूटिव। तो इस जार फाइल को मैं कॉपी कर रहा हूँ और कहाँ पे अपलोड करूंगा बताओ। सोर्स पैकेज में लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज में डालूंगा इसलिए वो नहीं आ रहा था बराबर ना। इसे जार फाइल भी Okay, रिक्वायर्ड है sir. तो राइट क्लिक ऐड जार फाइल। ओके उसका लोकेशन में दे रहा हूँ डाउनलोड में है वो, डाउनलोड में फाइल अपलोड के अंदर फाइल अपलोड में वेब सोर्स दिस इज योर सोर्स फाइल ओपन। ठीक है या कॉस्ट डॉट जार फाइल आ गया। अभी ऑटोमेटिकली वो एरर भी चला गया। इज इट क्लियर। हेलो Yes, sir. या तो आपको वो कॉस्ट फाइल करके हो वो डाउनलोड करके मैंने कैसे डाउनलोड करके रखा था इसीलिए वो डाउनलोड दिस इज योर फाइल दैट यू हैव टू डाउनलोड एंड ऐड टू द जार लाइब्रेरीज में वो जार फाइल ऐड करनी। इज इट क्लियर। हेलो Yes, sir. ओके सो दिस इज मल्टी रिक्वेस्ट। जैसे आप लोगों ने यहाँ मल्टी पार्ट फोन डेटा दिया हुआ है एनक्रिप्टेड टाइप तो उसी के रिलेटेड आपका इंपोर्ट फाइल मल्टी रिक्वेस्ट दिस इज अ कमांड। तो यहाँ पे इंपोर्ट फाइल की जरूरत है और दैट इज अवेलेबल इन द वन ऑफ द सर्वर com.orely.servlet.multipart request और इसी के अंदर उसकी हेडर फाइल की ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है और जस्ट वी आर क्रिएटिंग द न्यू ऑब्जेक्ट m new multi-part request and giving the request to the D drive and new. Is it clear? Hello. Yes, sir. Yeah. So let's start now. देखते हैं अभी यहाँ पे रन करके क्या एरर है क्या है वो देखते हैं। अगर JSP का एरर है तो we will solve it. Otherwise रन कर रहे हैं हम लोग चेक इट। या यहाँ पे आ गया। So now यहाँ पे वी आर सिलेक्टिंग द फाइल। सपोज हम लोग को अपलोड करना है सैंपल डॉट चैप्टर ओपन इट दैट इज अ लोकेशन यहाँ पे आ गया। फिर क्लिक ऑन अपलोड। अभी नाउ व्हाट इज देयर गिवन गो पे क्लिक करने के बाद स्टेटस रिपोर्ट द रिक्वेस्ट सोर्स इज नॉट अवेलेबल। रिक्वेस्ट सोर्स है वो अवेलेबल नहीं है इसका मतलब वहां पे जो सैंपल डॉट चैप्टर फाइल ली है मैंने डाउनलोड अपलोड की वो रन नहीं हो रही। ठीक है चलो वापिस रन करते हैं दूसरा कोई पीडीएफ लेता हूँ चेक कर लेता हूँ। सॉरी अगेन रनिंग। या नाउ क्लिक ऑन ब्राउज। कोई दूसरा पीडीएफ फाइल ले लेता हूँ सपोज इज 12 कॉमर्स प्रैक्टिकल हैंडबुक ओपन इट। ओके नाउ अपलोड। अभी भी वही एरर आ रहा है तो हम लोग JSP फाइल ठीक है HTML फाइल डिलीट करते हैं और JSP फाइल में हम लोग करते हैं क्योंकि शायद वो HTML फाइल लेता नहीं होगा। इसमें राइट क्लिक आप नेटबिंग्स 8 से यूज करोगे ना तो आपको HTML ही आएगा JSP नहीं आएगा यहाँ index.html आएगा। इज इट क्लियर। Yes, sir. ओके वो पार्ट में जाना नेटबिंग्स 8 में हमेशा HTML ठीक है नो प्रॉब्लम। अभी मैं वापस बिल्ड कर रहा हूँ क्लीन एंड बिल्ड। Yeah, now it is report is there. Okay, successfully run. Yeah, now click on browse. Take the suppose this is the file commerce practical handbook. Okay, upload. What is the error बाबा request resource is not available। ठीक है मेरे ख्याल से आपने D ड्राइव में न्यू में जो आपने लोकेशन दिया है वो क्रिएट नहीं हो रहा है
तो हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे अपलोड करना है वहां पे एक फोल्डर बना के रेडी रहे। डी ड्राइव में न्यू फोल्डर, उसका नाम क्या है, न्यू। ठीक है, अभी चेक कर, रिक्वेस्ट मतलब वो हो चुका है, रिक्वेस्ट रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल करके चेक कर लेते हैं। अगेन क्लिक ऑन ब्राउज, वापिस वही फाइल लेता हूँ, हैंडबुक एंड अपलोड, इस वही आ रहा है। Why it is like that? Check it again. Request D drive, पहले ऐसे वाला स्लैश था और स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर भी दे दिया। अभी चेक करते हैं वापिस एक बार, close all tab, run, click on browse, then we select the file, upload. Why request resource is not available? WASP server status request resource is not available. तो अवेलेबल है। What's the problem now? ठीक है, चेक करते हैं वापस। We are creating the file, input type file, name, submit, upload। अपलोड करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट एम आएगा और रिक्वेस्ट दी जाएगा। चलो अच्छा, एक्शंस में कुछ दिया नहीं रहेगा इसीलिए है, तो एक्शन में हम लोग अपलोड सर्वलेट देते हैं, इक्वल अपलोड देखते हैं। माझा लेक्चर चालू आहे। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. yeah, there are two argument passing the multi request class constructor. Yes, we have done. Then first one HTTP servlet object and second one string object for location, that is we are given. So here I am supporting that you have new order in a D driver, that web.xml चेक करते हैं ये web.xml में भी अपलोड सर्वलेट करके आया है कि नहीं। चलो वो भी फाइल देख लेते हैं। वेब आईएनएफ में web.xml में आया हुआ है ना अपलोड सर्वलेट, सर्वलेट क्लास अपलोड। चलो एक्शंस भी वो मैंने दिया था वो निकाल लेता हूँ और बाहर में वापस रन करके चेक करता हूँ। क्यों नहीं अपलोड हो रहा है बाबा? अपलोड USB any files, earplan, open it, upload not available, resource क्यों नहीं अवेलेबल? ऐसा बोला रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। रिसोर्स का क्या प्रॉब्लम है? रिसोर्स तो हम लोगों ने जार फाइल ऑलरेडी दिया है, तो क्यों रिसोर्स नहीं? इसमें कुछ चेंजेस करना है वेब डॉट में, क्या वो देख लेते हैं। सर्वलेट क्लास अपलोड सर्वलेट, सर्वलेट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वलेट, तो दैट इज बराबर है। ठीक है, चलो एक काम कर लेते हैं, उनका फाइल हम लोग देख लेते हैं क्या क्या। डाउनलोड फाइल अपलोड, फाइल अपलोड बिल्ड में सोर्स में जावा, अपलोड राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, या दिस इज द फाइल, सेम तो फाइल है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? एनी एरर नहीं है तो भी क्यों आ रहा है? डी ड्राइव स्लैश न्यू
अभी तो वहाँ पे क्रिएट भी किया हम लोगों ने, एम न्यू मल्टीपल अपलोड। अच्छा, डी ड्राइव में जो फाइल है उससे अपलोड करना है, ऐसा कुछ है। सो वी गो ऑन दैट। एक फाइल में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और डी ड्राइव में न्यू में पेस्ट कर लेता हूँ। चेक करते हैं अभी। फाइन, रन। Why it is like that? Okay, click on browse, D drive, new file is there, open, upload। फिर भी वही status report, request resource is not available। क्लासफिश सर्वर में जो request resource दी है वो अवेलेबल नहीं है, ऐसा क्यों? चेक इट। चलो वापस एक गूगल पे मार देते हैं कि वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, अपलोड फाइल एरर, हाउ टू फाइंड एरर वो भी आप लोग देखते जाओ तो आपको पता चले। अपलोड द फाइल एरर इन रिक्वेस्ट रिसोर्स, नहीं, अपलोड फाइल एरर रिक्वेस्ट रिसोर्स not available, not, yeah, that is the error we are getting, not available। तो क्या करना है? ओ, so I have 3 systems on IP address, all I have configured a system to run IP address with different ports, किया हुआ है पोर्ट का। OS manager ये stack overflow में ये नहीं मिलता है। I'm getting that error। So login into server via reboot desktop, run time integer, click on start run type int managers, click enter, expand as, click on sites and select your start। Okay, देखते हैं ये करके। init mgr enter। Windows cannot find the init, make sure type the correctly and then try init mgr। init mgr ही है ना? ये भी सोल्यूशन नहीं है। This was not found, error in uploading file in database। Let's find। No, error status path detail, I'm uploading is not named, password is, ये भी नहीं है। Salt temporary Tomcat error, Tomcat नहीं है, Glassfish server error। Yes, resource not found। So we are not getting that error, upload files। ठीक है, आपके इसमें भी ये एरर क्यों आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा मुझे, उसके बिना पता नहीं चलेगा अभी। जी ये एरर है लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। या दैट इज एरर अपलोडिंग, कुछ अलग ही बता रहे हैं। ठीक है, मैं फाइंड आउट करता हूँ
आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, एक्चुअल में अभी आप लोग को रिलेटेड में आपको मैसेज आना चाहिए था सक्सेसफुली अपलोडेड मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट में, लेकिन नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फाइल एग्जांपल्स अवेलेबल है क्या वो देखते हैं गूगल में, इसी तरह का अपलोड का एग्जांपल, और दैट वी कैन डू इट। अपलोड फाइल पीडीएफ यूजिंग NetBeans program. वैसे नहीं लिखते, क्या लिखेंगे, अपलोड फाइल एग्जाम्पल इन एंटरप्राइज जावा। ट्यूटोरियल दिया, यही तो ट्यूटोरियल चालू था। अपलोड फाइल एग्जाम्पल इन जावा। या ना, दिस इज द एग्जांपल। देखते हैं अभी इसमें क्या मिलता है। वही सेम मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा सेम तरीके से उन्होंने दिया है टेम्पररी, लेकिन थोड़ा एग्जांपल अलग है। दिस इज द फाइल वी हैव टू डू इट, अपलोड इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पे क्लिक होने के बाद ये फाइल दिखाई देनी चाहिए। ओके, कोडिंग में क्या लिखा है, फाइल अपलोडिंग फाइल पार्ट गेट इनपुट कंटेंट। ओके चलो ये कर लेते, देखते अभी आ रहा है। नाउ वी हैव टू डू इट। ये फॉर्म में लेता हूँ, ठीक है, इसको बाजू में रखता हूँ, ये दूसरा लेता हूँ उसी के अंदर, फाइल न्यू प्रोजेक्ट जावा वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। आपको आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो, हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। क्या दिस इज अ ट्रायल, अभी आप लोग को नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है वो तो सब आपको फाइंड आउट करना होता है। ओके, सो मेथड पोस्ट एक्शन अपलोड मल्टी पार्ट वही है, सेम मल्टी पार्ट वाला ही है, बट एग्जांपल दूसरा है। चेक कर लेते हैं कि इसमें क्यों आएगा। इसमें ये कंटेंट वाली फाइल है उसकी, जो फाइल अपलोड होगी लोकल हाउस में, और वही फाइल अपलोड करते वक्त उन्होंने सर्वलेट फाइल अपलोड सर्वलेट डॉट जावा बिगिंस एज फॉलो, मतलब ये फाइल अपलोड सर्वलेट इस तरह वो चालू होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या बताया, पोस्ट रिक्वेस्ट इज गोइंग ऑन दैट राइट। हाँ, ये टेक्स्ट txt फाइल ली है, दिस इज अ सैंपल डॉट txt फाइल, एज दैट फाइल अपलोडेड टेम्पररी डिटेल्स फाइल्स। तो आपको एक लोकली टेम्पररी फाइल सिस्टम में ये देखें, दिस इज सबमिटेड डेटा फाइल अपलोड फॉर्म लुक्स लाइक दिस, मतलब जब फाइल अपलोड होगी तब इस तरह आपको दिखाई देगी। फाइल अपलोड होने के बाद मल्टी पार्ट में इस तरह वो टेक्स्ट फाइल आपको दिखाई देगी। ठीक है, नाउ सर्वलेट बिगिंस एज फॉलो, वेब सर्वलेट इस तरह आप लोग का आना चाहिए, तो वी हैव टू गिव दैट वेब सर्वलेट मल्टीपल पार्ट एंड दिस वन पार्ट इन द फाइल अपलोड फाइल। अभी हम लोग नया सर्वलेट फाइल बनाएंगे, राइट क्लिक न्यू सर्वलेट, उसका नाम यस, उसका नाम उन्होंने फाइल अपलोड सर्वलेट लिया है, लेकिन हम लोग ने इधर यहाँ पे अपलोड करके लिखा था ना, किधर है यहाँ पे एक्शन में अपलोड, तो हम लोग अपलोड ही लेते, अपलोड, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, ऐड टू डिस्क्रिप्टर, फिनिश। ओके, अभी इसी के अंदर स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट करना है, उन्होंने बताया था ना, यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है एट्रीब्यूट लेके, तो हम लोग ने @वेब सर्वलेट फाइल अपलोड इसी तरह दिया, जस्ट क्लिक ऑन इट और ऐड द फाइल, इंपोर्ट फाइल एनोटेशंस ऐड हो गया ऊपर। ठीक है, तो ये चला गया, ये यहाँ से स्टार्ट करना, हम लोग ने वो स्टार्ट किया कहाँ से, वेब सर्वलेट नेम file upload servlet url patterns upload multiple configurations and then we'll start with the public whatever process is going request। अभी यहाँ पे हम लोग को कोडिंग में ओके, तो यहाँ से हम लोग को अभी कंटेंट में ये कंटेंट कॉपी करने हैं। ठीक है, सो आई जस्ट कॉपी दैट पार्ट। अभी देखता हूँ यहाँ से लेके फाइनली तक यही है। हाँ, अभी ये लॉगर डॉट लॉग फाइल का एरर आया ना, प्रॉब्लम ड्यूरिंग द अपलोड एरर, तो लॉगर फाइल यहाँ पे उन्होंने
स्पेसिफाई किया, पब्लिक क्लास फाइल अपलोड प्राइवेट, देखो ये लॉगर, ये यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है ऊपर, यहाँ पे प्राइवेट, या तो ये लॉगर फाइल चला गया, एरर चला गया, ठीक है। हाँ, अभी ये प्राइवेट फाइल लॉगर यहाँ पे दे रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ओके कंप्लीट। दिस इज द लॉगर फाइल, स्टैटिक बता रहा है, स्टैटिक है तो ऊपर डिक्लेयर करूँ क्या, चेक करता हूँ, वेट यहाँ, अच्छा यहाँ पे अपलोड करके एक्सटेंशन, या ठीक है। कौन? या अभी ये java's.mail.part अपलोड करना, फाइनली गेट पार्ट और स्मार्ट वो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आउटस्ट्रीम का एरर, इनपुट जावा इनपुट डॉट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट जावा इनपुट स्ट्रीम, ये बड़ा फाइल है बट हेलो, थोड़ा सा गड़बड़ है, एक दिख रहा है अपलोड नहीं लेते, इसको डिलीट करते और फाइल अपलोड सर्वलेट करते। जल्दी 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 है, यहाँ पे हम लोग फाइल अपलोड, राइट क्लिक न्यू सर्वलेट, फाइल अपलोड सर्वलेट, and then next add to descriptor, finish. After that we start with this directly, copy with the annotations, and you can start that annotation from here. We just import that file of the web servlet annotations, import it, okay there. Now logger file, we have to use private logger file from here, यहाँ पे private logger file, yes. Then downside in the try, we are using first upon save the file destination part, inside the try, not try, above the try. Finally we declare it, and then output string null, get writer null. फाइनल में कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, हाँ ओके फाइन। अभी एरर किधर आ रहा है, तो यहाँ पे पहला एरर import java dot utility dot logging फाइल हो गया एरर। फाइनल पार्ट में यहाँ पे एरर है import javas.mail dot part, हो भी गया एरर। नेक्स्ट गेट पार्ट इंस्टेंट वो कर सकते हैं, ओके। नेक्स्टिंग ये क्या है, गेट मेथड एंड फाइल अपलोड से गेट फाइल नहीं, ओके ये टाइम अभी देना पड़ेगा। फिर आउट, आउट से लेके क्लोज तक, फाइनली क्या बाद में लेते हैं, पहले ट्राई कर लेते हैं। सो ट्राई के अंदर ये फाइल्स आ गई, इसके अंदर राइटर्स है, क्या दिया है उन्होंने, आउट डॉट, हाँ इसमें इनपुट स्ट्रिंग का एरर, इनपुट नहीं है पहले निकाल लेते हैं, गेट फाइल या राइटर डॉट प्रिंट लाइन नहीं, ये राइटर प्रिंट राइटर का दिया है ना, राइटर डॉट प्रिंट लाइन कैसे है, okay. Now import java dot output stream, import java dot input stream,
again unused unsigned hint, अगे यहाँ पे न्यूज हिंट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइल पाथ। अच्छा ये फाइल पाथ ऊपर चाहिए, ऊपर ले लिया, देन कंटेंट, आउटपुट स्ट्रीम नल, इनपुट स्ट्रीम नल, फाइल इनपुट स्ट्रीम नल, ये बराबर है, कुछ तो गड़बड़ है, लॉगर बराबर है अभी, अभी क्या है कैच। अच्छा कैच का फाइल भी इसके अंदर दिया है, इसलिए एरर आ रहा था। ओके समझ में आया एरर। चलो ये ट्राई के अंदर वापस से हम लोग उतना ही फाइल लेते, कैच का भी नहीं, लॉगर्स रिलेटेड ट्राई, टेस्ट। ए माही बोलो ते बघ, print line writer, print line, that is the error, print line writer, print writer, input start string तो गया, फाइल कंटेंट्स यहाँ पे आ गई, यहाँ सेपरेट फाइल का एरर चला गया, आउट डॉट प्रिंट एलन चाहिए, ये आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट राइट, आउट डॉट। ओके उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, राइट। चलो ये हो गया, अभी कैच पार्ट देखते, कैच पार्ट में एरर आया तो यहाँ पे गेट एंड मैसेज ऑफ लॉग, तो ये यहाँ पे फाइनल के पहले कैच करना पड़ेगा, या कैच फाइल एरर आया तो कैच डॉट इम्पोर्ट फाइल नॉट फाउंड का एरर, यहाँ आउट आएगा, आउट आउट, ठीक है, आउट डॉट प्रिंट, आउट डॉट प्रिंट, आउटपुट स्ट्रीम आउट क्यों दिया है फिर, यहाँ पे ओ देते, तो इधर गया लॉगर का, इधर क्या इनपुट, तो इनपुट किया है, ओके नाउ इट इज कैच तक बराबर हो गया। अभी फाइनली में इफ आउट डॉट नल देन आउट डॉट क्लोज, इफ कंटेंट डॉट नल देन क्लोज राइटर डॉट नल, राइटर है ही नहीं तो कॉपी इधर, ओके हो गया, आउट डॉट क्लोज एंड ऑल, ओके फाइन। अभी एरर किसका है, खाली दो एरर है, फाइल कंटेंट का एरर, यहाँ पे आउट की जगह आपको ओ लेना चाहिए था, बस अभी ये हो गया कंटेंट कंप्लीट, फाइन ना इंटीजर हो गया, फाइन फाइल अपलोड का ये काम हो गया। अभी देखते हैं कंपाइल कर, क्लीन एंड बिल्ड, यस नाउ रन, या रन एनीवे विद द कंपाइल्ड एरर रनिंग, या नाउ टेम्पररी फाइल्स डेस्टिनेशन दे रहा है, ब्राउज फाइल अपलोड किया, डेस्टिनेशन स्लैश टेम्पररी, अभी क्लास कास्ट एक्सेप्शंस का एरर, जावा में एक्सएमएल पार्ट का एरर, ये दूसरा एरर, जावा एक्सएमएल पार्ट का एरर यहाँ ऑलरेडी है, फिर क्यों एरर आ रहा है, तो कंटेंट का एरर, यस मेल मैसेजिंग पार्ट गया, नाउ रन एनीवे, या कंटेंट ब्राउज फाइल को मैंने ले लिया, अपलोड किया, अभी मैसेज नहीं आया, कैन नॉट रीच द फाइल, क्या आ रहा है, कैन नॉट रीच दिस पेज, कैन नॉट रीच दिस पेज, अपना फाइल तो ले रहा है लेकिन कैन नॉट रीच दिस पेज आ रहा है, डेस्टिनेशन टेम्पररी, ओके अभी क्या एरर, अभी वो एरर नहीं है, फाइल अपलोड हो रही है लेकिन वो कैन नॉट रीच दिस पेज क्यों आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको डिफॉल्ट ब्राउजर को चेंज कर दे, रन करने के लिए ब्राउजर का नाम, ओके
ये अभी आ रहा है, लेकिन अभी इसमें अभी कैन नॉट रीच द पेज किसके लिए आ रहा है? फाइल अपलोड सर्वलेट, ये फाइल्स को एक्शंस नहीं दे रहा है वो, क्यों? बाकी तो ना अभी एरर भी क्या बता रहा है, अलग से एरर है आउट। अच्छा, आउट डॉट राइट है ना, वो डॉट राइट होना चाहिए। ओके, वो भी एरर गया। अभी क्या है? रन। नो, यस, यहाँ अभी एक भी एरर नहीं है। सारे फाइल तो सेट हुए हैं, एरर क्यों आ रहा है? index.jsp में फाइल अपलोड सर्वलेट राइट डिटेल्स रिटर्न एक्शंस, और उस एक्शंस में डिबग। अगेन सेम रिक्वेस्ट रिसोर्स नॉट फाउंड का एरर है। ठीक है, चलो ये फाइल बाद में कर लेते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं दूसरा फाइल आपको कंटिन्यू करूँ जो आपके बुक में प्रैक्टिकल में दिया हुआ, हैंड बुक में। ठीक है, हेलो, यस स्टूडेंट, Yes, sir. Yes, sir. सुन रहे हैं कि आपने? ये देखना पड़ेगा फाइल अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। दिस इज द वर्किंग विद फाइल्स वी आर ऑलवेज गेटिंग। जैसे सी में वर्किंग विद फाइल्स होता है, सी प्लस प्लस में भी था, वैसे ही जावा में भी अभी ये वर्किंग विद फाइल्स, फाइल अपलोड डाउनलोड पार्ट। तो हमारे प्रैक्टिकल हैंडबुक में एक अपलोड नहीं दिया है, डाउनलोड का दिया हुआ है, तो वो चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें है वो प्रैक्टिकल मेरा हो चुका है, तो वो मैं कर नाउ गो ऑन BSCIT प्रैक्टिकल हैंडबुक। या 3A, 3A है ना आपका वो। सी दैट नाउ क्रिएट सर्वलेट एप्लीकेशन टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल। ठीक है, ये प्रैक्टिकल हम लोग कर लेते हैं, ये हो चुका है, ये आता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या कर। गो ऑन नेटबीन्स, गो ऑन फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट, take the web applications, take the glassfish server, next, and finish. Now go on index.jsp, जहाँ पे आपको फॉर्म क्रिएट करना है, जहाँ पे आपको देना। यहाँ पे भी सेम तरीके से किया हुआ है। क्या एरर है वो मुझे फाइंड आउट करना है। अगर ग्लासफिश सर्वर का एरर है तो वी हैव टू डू इट विद द टॉमकैट। ओके, हो सकता है बाय चांस फाइल लोड के लिए टॉमकैट सर्वर सपोर्टेड हो सकता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अगर एरर वापिस आया मुझे, ये फाइल तो मुझे हो चुकी थी, तो यही मैं दिखा रहा हूँ। Here we are giving the actions file upload servlet, that is your next file servlet. Post means sending the data. See that here is also again multi-form data. Select file to upload, input type file, destinations, text temporary, same submit, जैसा वो फाइल था ना वैसे ही फाइल है, अलग कुछ नहीं। Then we are creating the file upload servlet, right? So right click on the source package, new servlet, वहां पे यही फाइल का नाम, जो फाइल का आपका वहां पे लोकेशन है, फाइल अपलोड सर्वलेट, फाइल अपलोड सर्वलेट। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, ऐड टू डिस्क्रिप्टर, फिनिश, फाइन। उसके बाद अभी हमारा ये पैकेज के साथ में नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट फाइल से लेके ले सकते हैं, लेकिन यहाँ डू पोस्ट मेथड में किया हुआ। कहाँ पे किया है? डू पोस्ट। तो वी आर पोस्टिंग द डेटा, लेकिन हम लोग कंटेंट में डाल सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट ये करना, इम्पोर्ट ऑल फाइल्स वी हैव टू रिक्वायर। तो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ पहले इम्पोर्ट फाइल्स। यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो आई पुट इट ओवर देयर। यहाँ पे ऑलरेडी जावा सर्वलेट है, ओके, अनयूज वो हो जाएगा। HTTP मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टी पार्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये फाइल भी यहाँ पे @ होना जरूरी है, दैट इज एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद वो एनोटेशन पार्ट यहाँ पे चला जाए ऑटोमेटिक। नेक्स्ट, आपका कंटेंट टाइप यहाँ पे प्रॉपर है, यहाँ स्ट्रिंग पाथ से लेके डेटा लेना है और रीड तक करना है, बराबर।
तो यहाँ से मैं स्ट्रिंग पाथ से लेके रीड तक कॉपी कर, एंड दैट इज यू आर यूजिंग इन द ट्राई। देखो अभी ट्राई के अंदर वी आर रिटर्न दैट स्ट्रिंग पाथ रिक्वेस्ट, अभी यहाँ REQ लिखा है, हमारा है क्या, रिक्वेस्ट है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट गेट पार्ट में। देन अभी यहाँ पे गेट सबमिटेड फॉर्म नेम टू स्ट्रिंग, यहाँ पे फाइल पार्ट में आउटपुट स्ट्रीम का एरर OS आ रहा है, तो वो तो आपको बाद में निकल चला है। इनपुट स्ट्रीम IS इज ऑल्सो नल दिया हुआ, ये भी अनयूज पार्ट उसको नल दे रहा है। फिर यहाँ पे और एक ब्रैकेट आएगा दैट वी हैव टू क्रॉस, एंड देन आफ्टर दैट आपको मैसेज, अच्छा उस ब्रैकेट के पहले मैसेज आना चाहिए था, आपका डेटा फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कैच फाइल, अगर आपको एरर आ रहा है तो एरर में फाइल नॉट फाउंड का एरर वो डिस्प्ले कर रहा हूँ वहाँ पे एरर, एंड देन आउट डॉट क्लोज। तो फाइल इज क्लियर। अभी यहाँ पे जावा सर्वलेट का कुछ यूज नहीं है तो रिमूव इट, यहाँ पे सर्वलेट का कुछ यूज नहीं है, ये भी रिमूव कर देते हैं अगर, ठीक है, हो गया। यहाँ पे अनयूज बहुत सारे चीजें वो आ जाएंगे अपने आप, एंटी रीड, ओके फाइन। चलो नाउ वी हैव टू रन दिस प्रोग्राम, क्लीन एंड बिल्ड। देखते हैं, एरर तो कुछ भी नहीं है, खाली एक दिखा रहा है कैन नॉट फाइंड द सिंबल स्ट्रिंग फाइल नेम फाइल पार्ट गेट सबमिटेड पार्ट, ये एरर आ रहा है, फाइल पार्ट मल्टी पार्ट का एरर। तो अभी ये फाइल्स यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, सराउंड दैट वी आर यूजिंग द कमेंट नो, तो गेट सबमिटेड फाइल नेम, व्हाई इट इज लाइक दैट। गेट सबमिटेड फाइल नेम के लिए आपको फाइल पार्ट डॉट गेट सबमिटेड, फाइल पार्ट डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम डॉट टू स्ट्रिंग एंड इट इज एरर। फाइल पार्ट है कि फाइल है, फाइल पार्ट है बराबर, गेट पार्ट फाइल, गेट सबमिटेड फाइल, इसका कुछ हेडर फाइल है क्या इसमें, नहीं। हाँ, कॉस्ट करके आपको सोर्स पैकेज में डाल देता हूँ मल्टी पार्ट के लिए जार फाइल, सो आई कैन यूज राइट क्लिक, ऐड द जार फोल्डर, कॉस्ट, यस। अभी चला गया है एरर क्या नहीं, और उसको कॉस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, इंपोर्ट दैट कॉस्ट फाइल, यहाँ से इंपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। तो कॉस्ट है इंपोर्ट कॉम डॉट ओरली, इंपोर्ट कॉम डॉट ओरेली डॉट सर्वलेट डॉट मल्टीपार्ट क्यों नहीं यूज हो रहा है, नॉट यूजेबल। फिर ये एरर गेट राइटर का एरर कैसे निकालेंगे, तो टू स्ट्रिंग मेथड सिंबल गेट सबमिटेड फाइल नेम लोकेशन वेरिएबल फाइल पार्ट ऑफ टाइप 1 एरर। अभी ये एरर क्यों आ रहा है फाइल पार्ट, चलो पहले देख लेते हैं रन करके क्या प्रॉब्लम है। अच्छा फाइल नेम में, फिर फाइल नेम में एरर आएगा, स्ट्रिंग फाइल नेम गेट सबमिटेड फाइल नेम। अच्छा गेट सबमिटेड फाइल नेम का कोई फाइल से क्या नहीं है, क्यों एरर आ रहा है अभी ये एरर है ये मेथड का, और इस मेथड के बारे में कुछ भी दिया नहीं है। दैट इज अ फाइल पार्ट में अंदर गेट सबमिटेड फाइल पार्ट का मेथड्स दिया नहीं है। अभी ये मेथड कहाँ पे लिखा हुआ है, इधर तो नहीं है। देयर इज अ फाइल डाउनलोड सर्वलेट सैंपल, डाउनलोड सर्वलेट का तो आना, लोड का क्यों नहीं है। ठीक है चलो, मैं पहले डाउनलोड का देखता हूँ फिर अपलोड का, दोनों में से एक तो आ जाएगा। फाइल न्यू प्रोजेक्ट,
जावा वेब एप्लीकेशन अगेन देखो आज प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है कंप्लीट क्योंकि ये बहुत सारा डिफिकल्टीज है ना। अपलोड का देखते हैं तो अपलोड का नहीं आ रहा है तो मैं डाउनलोड का देख रहा हूँ, दोनों में से एक तो आना ही चाहिए। आई कॉपी दैट फाइल, डाउनलोड एप्लीकेशन सैंपल चार्ट एंड TOC PDF। यस नाउ इसके बाद का स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक each close output close तक copy and go on the source package, right click new servlet, servlet का नाम रहेगा download servlet, next add to descriptor, finish और ये यहाँ पे download servlet। okay now servlet context का header file ऊपर add, input stream का header file add, फिर क्या है देन वाला तो ये यहाँ पे कंटेंट का तो कमेंट दे देंगे वो चला जाएगा। प्रिंट राइटर का क्या इशू है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको देने की जरूरत नहीं है, डिलीट हो गया। चलो ये शायद प्रैक्टिकल रन होगा, डाउनलोड चेक इट, फिर एक्सप्लेन कर। चलो वन yes this is file download, two files we have kept, sample chapter and table of content। we just click on that sample chapter और click on that table of content। अभी भी वापस TOC PDF क्या बोल रहा है, ऑलरेडी नहीं है करके बता रहा है ना। string file attachment file name download content attachment file name IS3 ठीक है, ऑलरेडी डाउनलोड में है तो मैं उसको डिलीट कर लूँ, सैंपल और सैंपल चैप्टर और TOC डिलीट कर। अभी रन कर रहा हूँ, क्लिक, वापिस सोर्स इज नॉट फाउंड, सेम। अभी यहाँ पे index.jsp में हम लोगों ने एक्शन दिया है क्या वो चेक कर लेता हूँ। href sample dot file name डाउनलोड बराबर है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या प्रॉब्लम है। ये प्रैक्टिकल मेरा पहला हो चुका था, क्यों नहीं हुआ है। वापिस रिक्वेस्ट रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल इन ग्लासफिश सर्वर। चलो मैं नेटबिन्स क्लोज कर रहा हूँ, नेटबिन्स में एरर आ रहे हैं, वापिस क्लोज कर रहा हूँ, वापिस नेटबिन्स चालू कर रहा हूँ। ओके या दैट इज अ फाइल वेब फॉर, ये मैंने रन किया था ऑलरेडी, शायद ये होना ही चाहिए। रन दिस, अरे वेब 4 चाले है ना, सेट एज पेज, सेट एज पेज। Yeah, now click on that sample chapter, yes, click on the table of content, yes। तो अपलोड डाउनलोड में चेक करने का वो फाइल अपलोड हुआ है कि नहीं, लेकिन यहाँ मैसेज आना चाहिए था, मैसेज क्यों ना, यस यहाँ नीचे मैसेज आया है देखो, ओपन एंड सेव, नीचे आपका ओपन और सेव आ चुका है, दैट इज सेव द फाइल, ओके, कंटेंट और सैंपल चैप्टर सेव।
आपने सेव किया, ओपन भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। जैसे सेव किया आपको डाउनलोड में हो रहा है, अपलोड, मतलब ये डाउनलोड का फाइल हो रहा है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो ये कंटेंट क्लियर है, मतलब डाउनलोड फाइल्स इज राइट, अपलोड का इश्यू आ रहा है वो देखना पड़ेगा। अपने भी पीडीएफ में एरर है, तो एरर क्या है वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्लास भी सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो देखना। दिस इज द फाइल जो मैंने लिंकिंग में दिया। अभी ये कोडिंग आपको समझा देता हूँ, फिर आगे जाता हूँ। सी दैट ना, यहाँ पे सिंपल कोडिंग लिखा हुआ है। आपने दो हाइपरलिंक बंधन बनाए हुए, क्लिक AHREF, उसके अंदर डाउनलोड सर्वलेट, दैट इज मींस योर सर्वलेट फाइल, आपका सर्वलेट फाइल का नाम है। उस फाइल नेम में हम लोग ने फाइल का नाम लिया है पीडीएफ, वो सैम्पल चैप्टर डॉट पीडीएफ फाइल ली है। ओके, फिर डाउनलोड क्या दिया है, toc.pdf, डाउनलोड सर्वलेट। ये यहाँ पे कंटेंट में क्लिक करने के बाद ये फाइल डाउनलोड हो रही कि नहीं है वो सेव करने के लिए ऑप्शंस पूछेगा। लेकिन ये किसके रिलेटेड है फाइल, इट इज रिलेटेड टू डाउनलोड सर्वलेट। तो आपके पैकेज में जो डाउनलोड सर्वलेट का पैकेज है उसके अंदर डाउनलोड के रिलेटेड कोडिंग लिखा हुआ, क्या कोडिंग है उसके अंदर बता। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिस्पॉन्ड द कंटेंट रिलेटेड टू एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन मतलब इट इज पीडीएफ, इट्स अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और मे बी इट इज XML फाइल, दिस रिलेटेड एप्लीकेशन ऑप्टेड स्ट्रीम, मतलब उसको स्ट्रीमिंग करना है। देन टेक द फाइल नेम, रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर फ्रॉम द फाइल नेम, फाइल नेम का रिक्वेस्ट आएगा। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, मतलब गेट द कॉन्टेक्स्ट पाथ, लोकेशन ऑफ दैट फाइल कॉन्टेक्ट, ये दो चीजें आती है, फाइल नेम और कॉन्टेक्स्ट पाथ। फिर इनपुट स्ट्रिंग, मतलब आपको यहाँ पे आया कॉन्टेक्स्ट पाथ में गेट रिसोर्स स्ट्रिंग स्लैश फाइल नेम, तो उस फाइल नेम का लोकेशन वहां स्टोर हो जाता है रिसोर्स। अगर आप लोगों ने इधर फोल्डर का नाम दिया, फोल्डर में आए इनपुट स्ट्रिंग। फिर रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, कंटेंट डिस्पोजिशन अटैचमेंट, जो हम लोगों ने कंटेंट लिए हुए वो अटैच करके दिखाने होंगे तो भी दिखा सकते हैं, सेट हेडर फाइल आता है ऊपर। और अगर हम लोगों ने वो फाइल डाउनलोड की जगह ओपन किया, देखो अगर डाउनलोड की जगह हम लोगों ने ओपन किया, ओपन पे क्लिक किया, तो वो फाइल वहां पे ही ओपन होगी। ओके, जो फाइल है वो वहां पे सैंपल चैप्टर फाइल ओपन होगी। अभी फिलहाल उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं, फिलहाल उसी फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है, तो ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है यू कैन नॉट ओपन। ये देखो समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, सैंपल चैप्टर करके कोई भी फाइल उसके अंदर पीडीएफ की फाइल है, ओनली सैंपल चैप्टर करके बना है। इज इट क्लियर? ओके, सो आपका कंटेंट में हेडर में वो अटैचमेंट फाइल आएगा, दिखाई देगा और फाइल का नाम आएगा। देन दे हैव टू रीड द कंटेंट। कंटेंट रीड करने के लिए क्या लगता है, जीरो से लेके लास्ट कंटेंट तक जाना होता है। आई इट इज देयर, इट इज जीरो, इट इज रीड अंटिल इनफाइनाइटली, कंटिन्यूअसली रीड करना और राइट करके आपको वो कैरेक्टर डिस्प्ले करना। फिर उसके बाद इज क्लोज, मतलब ये यहाँ पे रीड होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद रीड क्या करना है, क्लोज करना है। फिर आउट डॉट क्लोज और फाइनली। समझ में आया? यस स्टूडेंट, हेलो हेलो, sir, yes sir, yes sir. ओके बोलो, हेलो, सबको समझ में आया? यस स्टूडेंट, इज इट क्लियर? ओके फाइन। सो अभी हम लोग सबसे पहले अटेंडेंस लेते हैं। मैं जानबूझ के अटेंडेंस आज लेट लिया क्योंकि पहले सर ज्वाइन होते हैं बाद में चले जाते हैं, क्योंकि अभी 26 स्टूडेंट थे, अभी वापस 21 पे आ। इज इट क्लियर? ओके, नाउ गिव मी अटेंडेंस फास्ट। रोल नंबर 7, 8, 16, सर 7 7 हो गया, 7, 8, 16, 16, उसके बाद 18, उसके बाद 21, उसके बाद 22, 23, 25, 25, 26, 32, 25, 26, 32, उसके बाद आपको 36, 40, 36, 40, So 44. 44, 44 तो प्रेजेंट दिखाई देगा। अभी आ रहा है क्या अनुजिया? नहीं, थोड़ा लेट था मेरा 10-15 मिनट। लेट चलेगा नहीं, अभी लेट, अभी Okay, एब्सेंट ही ना। या Okay. 49, सर then 43
52 40 सर 40 43 सर 43 40 हो गया 43 शिवम अभी आया है जा रहा है आ रहा है 43 44 45 46 49 52 ये पूजा पुजारी नंबर क्यों नहीं लिखा है तेरा सामने पूजा पुजारी सर नंबर 18 है उसका 20 हाँ सब रीनेम नहीं हो रहा है। होता है रीनेम आप करो रीनेम होता है वो अभी नहीं होगा लेकिन नेक्स्ट टाइम सेटिंग हाँ से जाते आज नहीं होता हो है रहा है। नहीं होता है रीनेम कर सकते हैं उधर ही ऑप्शंस में ऊपर जाके रीनेम कर सकते हो आप नेक्स्ट टाइम करो 52 रवि 50 रवि किधर है 52 रवि है पीला अभिषेक किधर दे रहा है 52 रवि हाँ हो गया 52 हो गया पूजा साई कुमार तुम्हारा रोल नंबर क्या है कटीमणि साई कुमार कटीमणि का रोल नंबर है 11 ठीक है हो गया 24 अभी कौन आया ये अनुभव प्रताप सिंह आ गया ये अभी ज्वाइन होते जब अटेंडेंस होता है तभी ज्वाइन होते ओके फाइन चलो अटेंडेंस हो गया सेव नाउ नेक्स्ट पार्ट चलो आगे जाते हैं आज थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ होने दो दैट इज द एरर फाइंडिंग जब आप कोई कोडिंग लिख रहे हो डेवलपर हो तो आपको इस तरह एक एक प्रोग्राम के लिए बहुत टाइम लेना पड़ता है व्हेन यू डू डेवलप द प्रोजेक्ट रिलेटेड जावा तो आपको तो बहुत प्रॉब्लम है तो वो अगर किसी ने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया होगा जावा में डेवलपमेंट में तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आप यूट्यूब से कंटेंट से गूगल से आप फाइंड आउट करके वो कर सकते चलो नाउ नेक्स्ट थिंग विल कंटिन्यू विथ योर अपलोडिंग डाउनलोड हो गया अपलोड का इशू आ रहा है लेकिन हम लोग एक अभी नया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो है ये वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत बार पूछा जाता है सिंपल सर्वलेट क्वेश्चन आंसर डेटाबेस के अंदर हम लोग ने क्वेश्चन आंसर दिए हुए क्विज क्विज एक क्विज करके टेबल बनाए और उस क्विज में हम लोग ने पूछा है व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया हु इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट उस सवाल के जवाब करेक्ट या इनकरेक्ट है आपको आउटपुट इस तरह है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया टेबल में व्हेन यू गिव द आंसर करेक्ट या इनकरेक्ट सबमिट होने के बाद आपको पता होगा दे आर आंसरिंग स्कोर भी बताएगा आपने 2 करेक्ट किए हैं तो 2 का करेक्शन इस तरह का प्रोग्राम है और ये बहुत बार पूछा हुआ है यूनिवर्सिटी ने पहले से प्रोग्राम है सो वी लेट्स सी दैट कि हाउ टू क्रिएट द टेबल डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड ऑल दैट ठीक है चालू करते हैं ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है बट वी हैव टू डू इट आज कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ठीक है यस सर मुझे टेस्टमॉस पहले बंद करने दो क्योंकि आपका पेपर चालू अरे शेड्यूल में कोई भी नहीं है आया क्यों नहीं आया पब्लिश तो किया था हम लोगों ने 16 10 से 11 क्यों नहीं आ रहे हैं अभी 10 से 11 में टेस्ट में ओपन है ओके सॉरी ओपन है अभी मुझे क्लोज करना है क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है सेव ओवर नाउ वी विल गो टू आवर प्रैक्टिकल सी दैट पेपर चालू हो जाएगा उनका चालू होगा अभी उनका प्रॉब्लम हो गया जैसे सो के उठने वाले बहुत सारे नाउ नेक्स्ट थिंग go on the file new project we go on the web publication next वेब पब्लिकेशन नेक्स्ट एंड फिनिश ये फाइल ऐसे ही रहने दो नया फाइल है तो उसको हम लोग कुछ हाथ नहीं पहले लगाते पहले जाते हैं सर्विसेज गो ऑन डेटाबेस ओके सर्विसेज में वहां पे जाएंगे डेटाबेस वेयर टू गो ऑन MySQL डेटाबेस यहाँ पे नया डेटाबेस क्रिएट करना क्रिएट द न्यू डेटाबेस क्या नाम है आपके डेटाबेस का QADB है ना यस सर तो QADB करके हम लोग नाम देते हैं क्वेश्चंस activated for databases QADB click on OK यहाँ पे QADB करके ओपन हो गया यहाँ पे उसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी टेबल बनाना है क्या बनाना है टेबल सो उन्होंने अगर क्वेरी से डायरेक्टली टेबल बनाना है तो भी कर सकते हैं सपोज एग्जीक्यूट द कमांड तो कमांड लिख के भी कर सकते हो और अदरवाइज एक एक यहाँ पे कमांड दिया हुआ है डायरेक्टली यूज दैट एंड कमांड तो हम लोग करते हैं यूज QADB और यहाँ पे पूरा ये जो कमांड है वो करते क्या क्या करते कमांड में है वो SQL का कमांड भी आपको बता दें क्रिएट टेबल क्वीज
क्विज नंबर वैरकर 5 प्राइमरी की, पहले एक क्विज नंबर दिया है वैरकर 5, फिर क्वेश्चंस पूछे फर्स्ट 100 वैरकर दिए, उसके बाद ऑप्शन 1 दिए हैं 50, ऑप्शन 2 50, ऑप्शन 3 वैरकर 50, ऑप्शन 4 वैरकर 50 एंड देन आंसर। बराबर है, यहाँ पे आपका टेबल कंप्लीट हो जाता है। फिर इंसर्ट क्या आ जाता है, इंसर्ट, यहाँ सेमीकोलन दे सकते हैं इफ यू वांट, बट उन्होंने एक साथ कमांड किया है इसे। यहाँ पे अगर हम लोगों ने सेमीकोलन दिया और यहाँ से इतना ही कमांड एग्जीक्यूट किया तो भी आपका आउटपुट आ जाए, तो इतना ही एग्जीक्यूट किया। आगे इंसर्ट क्विज, वैल्यूज डाले हैं उन्होंने, वैल्यूज में उन्होंने क्या क्या डाला हुआ है, पहले क्वेश्चंस नंबर, फिर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सवाल पूछा है, उसके ऑप्शन दिए हैं न्यू दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, और राइट आंसर, आंसर राइट लास्ट में दिया हुआ है, दैट इज आंसर, आंसर इज लास्ट में, राइट आंसर न्यू दिल्ली करके लास्ट में। इज इट क्लियर? इस तरह इंसर्ट क्विज, जितने भी सवाल पूछे उतने सवाल आप ऐड कर सकते हो। इधर उन्होंने 5 सवाल पूछे। क्लियर? क्लियर? इस तरह उन्होंने किया है। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे चाहिए। अभी मुझे अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट, नाउ आई एग्जीक्यूट दैट कमांड। कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है बटन, यहाँ पे होता है। सो क्लिक ऑन एग्जीक्यूट द डेटाबेस, रन द एसक्यूएल। एक एरर दिखा रहा है, वो एरर निकाल देते हैं, शायद सेमीकोलन का एरर है। चलो वापस करते हैं, एग्जीक्यूट ओवर, प्राइमरी की का एरर दिखा रहा है, क्या है, क्विज तो बन गया। राइट क्लिक, व्यू डेटा करते, चेक कर दे, अगर आ चुका है तो यस हो गया, एरर नहीं है, हो गया व्यू क्विज, वो सेमीकोलन का हो गया। देखो यहाँ पे 3 आया, एरर किधर है, मतलब फोर्थ में, फोर्थ क्विज में एरर है, दिखाई दे रहा है, फोर्थ क्यूज में एरर है। तो फोर्थ क्यूज में क्या एरर है वो देखते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है फोर्थ क्यूज में। ना इंसर्ट क्यूज वैल्यूज फॉर यूनिट किलोमीटर, या देखो सेमीकोलन नहीं है। ओके, अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फोर्थ का भी हो गया, फिफ्थ का भी सेमीकोलन देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अभी व्यू करते हैं डेटा। ना 5 सवाल आ गए, दिखाई दे रहा है, यस। हाँ सर। मतलब डेटाबेस एंटर हो गया। कैसे किया देखा आपने डेटाबेस, आप इस तरह भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका मैंने क्या बोला हुआ है, वी कैन क्रिएट द टेबल, राइट क्लिक, क्रिएट द टेबल, यहाँ पे टेबल का नाम लिख के, ओके, सारे फील्ड नेम ऐड करके, यहाँ पे ऐड करके वैरकर डेटा टाइप वगैरह देके, जैसे मैं अभी यहाँ पे दे सकता हूँ, ऐड वैरकर, समझ में आया, वैरकर 100, फिर प्राइमरी की, नहीं सॉरी, प्राइमरी की फॉर क्विज नंबर था ना, पहले क्या था, पहले क्या था, यहाँ पे क्विज नंबर, यहाँ से लेता हूँ, देखो मैं बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, वहां से भी बना सकते, यहाँ से भी बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटाबेस माई एसक्यूएल से भी बना सकते डायरेक्ट। क्विज नंबर है, क्विज नंबर के लिए क्या डेटा टाइप लिया है, वैरकर 5 लिया हुआ है, सो आई यूज देयर वैरकर 5, प्राइमरी की, ओके, देन अनदर कॉलम ऐड, फिर आपका दूसरा क्या था, क्वेश्चंस, फिर वैरकर क्या है 100, ओके, फिर ओके, फिर नेक्स्ट वन ऐड कॉलम, यहाँ पे ऑप्शंस 1, देन आपका होगा वैरकर, वैरकर कितना है 50, ओके, ऐसे ही ऑप्शन, ऑप्शन 2 OP2 वैरकर, वैरकर कितना है 50, ऐड, ऐसे ऑप्शन 3 वैरकर 50, मतलब दोनों तरीके से आप बना सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि यहाँ से बनाया तो हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं, एक ही बात है। माई स्किल से भी डायरेक्ट कमांड लिख के बना सकते सर 3 बना चुके हो ना आप सर वैरकर? हाँ, ऑप्शन 3 हो गया तो 4, हेलो 3 हो गया, 4 वैरकर 50, ओके, और आंसर ANS वैरकर 50, फाइन, हो गया। तो इस तरह टेबल, अभी देखो क्विज 1 करके बनाया, ओके किया, क्विज 1 भी आ गया, दिख रहा है, हाँ। राइट क्लिक, फिर व्यू डेटा, और व्यू डेटा में ऐड भी कर सकते हो, इधर ऐड करोगे, ऐड करके आप क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, है ना, 1, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है 001, सॉरी उसके अंदर 001 था, ठीक है ना, 1 तो 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपने ऊपर, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया,
ओके, इस तरह सवाल पूछ सकते हो, इसके अंदर इसमें ऑप्शंस डाल सकते हो। ओके, वो टाइप करना नहीं आया समझ में? क्लियर है? यस न्यू दिल्ली, कोलकाता टाइप भी कर सकते हो। फिर उधर है चेन्नई, फिर उधर है मुंबई। मुंबई, और राइट आंसर आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, क्लियर? यस सर। मतलब यहाँ पे वो भी यहाँ से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप टेबल बनाना समझ में आया? पहला पार्ट क्लियर हुआ? ओके, इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म बनाना है जिसमें वेलकम क्यूज आएगा और क्लिक टू स्टार्ट क्यूज आएगा, हाइपरलिंक, बस दैट्स ऑल। एंड देन जंप टू द क्यूज सर्वलेट, क्यूज सर्वलेट में जंप कर, ठीक है, इतना ही करना है। तो आपका ये रहा नेक्स्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पार्ट। तो जा रहे हैं हम लोग कहाँ पे, प्रोजेक्ट के अंदर, नए प्रोजेक्ट में इंडेक्स डॉट जेएसपी में। यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं वेलकम टू क्यूज सर्वलेट, और क्यूज सर्वलेट करके नया फाइल आएगा, और टाइटल में हम लोग दे रहे हैं क्यूज सर्वलेट एप्लीकेशंस, बॉन्ड टाइटल क्यूज सर्वलेट एप्लीकेशन। हो गया? अभी मुझे सर्वलेट फाइल बनाना है, तो राइट क्लिक ऑन द सोर्स पैकेज, न्यू सर्वलेट, इधर क्या क्यूज सर्वलेट करके पैकेज, जो फाइल यहाँ पे हम लोग देंगे वही फाइल आपको वहां पे मेंशन, एक्शन में जो फाइल आएगा वही। देन ऐड टू डिस्क्रिप्टर, फिनिश। क्यूज सर्वलेट फाइल में क्या क्या करना है, बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग क्यूज सर्वलेट में वी हैव टू गिव दैट कि फॉर्म शो रिजल्ट, आउट डॉट प्रिंटलन शो रिजल्ट करके एक्शंस देने वाले हैं, वो जो शो रिजल्ट आएगा नेक्स्ट फाइल, दिस इज नॉट अ फर्स्ट फाइल, दिस इज नेक्स्ट फाइल। ओके, सो ये आपको देना है प्रिंट राइटर में आउट डॉट प्रिंटल फॉर्म शो रिजल्ट, ये दूसरा फाइल का नाम है जो हम लोग सर्वलेट में बनाएंगे। अभी कनेक्टिविटी, क्लास फॉर नेम, जावा डॉट एमएसक्यूएल, रिजल्ट सेट, क्वेश्चंस नंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्राई के अंदर आना चाहिए। और भी चीजें आएगी, आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू, ये बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। कॉपी पेस्ट। अभी सबसे पहले कनेक्शंस, हाउ टू गेट डन, ड्राइवर का नाम क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माईएसक्यूएल डॉट जेडीबीसी ड्राइवर, जेडीबीसी कनेक्टिविटी के लिए माईएसक्यूएल का ड्राइवर हम लोग ले रहे हैं। इज इट क्लियर? ओरेकल से बनाया है तो ओरेकल का ड्राइवर, जेडीबीसी ओडीबीसी से बनाया है तो जेडीबीसी। देयर आर 4 टायर्स, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। वी कैन ब्रिज द कनेक्टिविटी बिटवीन द सर्वलेट एंड योर डेटाबेस। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अभी कनेक्शंस, कनेक्शन करके आपका ऑब्जेक्ट है तो उसका हेडर फाइल import java.sql.connection ऊपर ऐड हो गया। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे भी हेडर फाइल java.language.class not found का एरर वाला एक्सेप्शन, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्शन के अंदर ड्राइवर मैनेजर भी है, तो java.sql.driver मैनेजर, तो कनेक्शन कौन कौन करके ऑब्जेक्ट बनाया और उसका ड्राइवर मैनेजर यहाँ। अगेन import java.sql exception, तो SQL exceptions जैसे इंपोर्ट करोगे वहां पे यहाँ पे SQL एक्सेप्शन हो गया। इज इट क्लियर? तो एक एक पार्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ जो आपने ऑलरेडी जेडीबीसी में देखा। नाउ ड्राइवर मैनेजर में गेट कनेक्शन इज मेथड टू कनेक्ट द URL ऑफ द MySQL एंड योर यूजर नेम इज रूट एंड पासवर्ड इज नॉट रूट एडमिन करके। ओके, देयर इज अ पोर्ट नंबर मेंशन ऑफ द, ये कहाँ पे आपको मिलेगा ये मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ है, फिर भी बता रहा हूँ। सर्विसेज में जाओ, जहां पे आपका URL चालू है उधर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज करो, उसके प्रॉपर्टीज में सारा चीजें होती है, ये डिस्प्ले नेम देखो, URL JDBC QADB दिखाई दे रहा है, ये उसका URL है, ये उसका ड्राइवर है। यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते, ड्राइवर, URL, यूजर रूट, और एडमिन करके पासवर्ड है वो आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा जिसमें आपने आपके पीसी में MySQL इंस्टॉल किया, तो आपने इंस्टॉल करते हुए एडमिन दिया है तो यहाँ एडमिन। इज इट क्लियर? यहाँ पे URL में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका QADB करके URL कनेक्टिविटी हुआ है, दैट इज डेटाबेस फाइल नेम QADB। गॉट इट? यस स्टूडेंट? यस सर। Okay. Now statement related. So now statement related is there. Click on the add import java.bean.statement.
तो स्टेटमेंट्स ऊपर चला गया, उसका हेडर फाइल गया, उसके अंदर कास्टिंग पार्ट आता है तो कास्ट कर लो। कास्ट में क्या होता है, तो आपको इस तरह ब्रैकेट आ जाता है उसके ऊपर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट में, एंड देन दे आर कमिंग, तो एरर चला। तो दैट इज अ स्टेटमेंट इज ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट बनाया stmt con dot create statement। why you are creating the statement, insert into जो कमांड है, या रिजल्ट सेट जो कमांड है उसके लिए स्टेटमेंट, जैसे इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट कमांड के लिए स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट रिजल्ट सेट, वी आर सेट द रिजल्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यानी कि हम लोग को रिजल्ट करना है एक व्यू डेटा के अंदर। तो व्यू डेटा में क्या होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्यूज, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हम लोग ने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्यूज करके दिया है, तो उसका रिजल्ट सेट एक ही व्यू में दिखाई देना चाहिए, इसलिए रिजल्ट सेट। तो उसका भी हेडर फाइल, क्लिक इट, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट रिजल्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? उसके बाद आपका एग्जीक्यूट क्वेरी करके, सॉरी, रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट क्वेरी करके मेथड है, जिस मेथड में आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वीज दिखाई दे। ओके, नाउ आउट डॉट प्रिंटलन, टेबल बॉर्डर ये बनाया हुआ है, आउट डॉट प्रिंटलन, सॉरी, ओके, ये हेडर फाइल गया, इंपोर्ट कास्टिंग, ये रिजल्ट सेट हुआ। हाँ, दिस इज अ हेडर फाइल, हम लोग ने किया नहीं। इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट, मैंने कंट्रोल जेड किया, वापस वो एरर दिखाई दिया। ना इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट रिजल्ट सेट, वी आर जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देन इंपोर्ट दैट रिजल्ट सेट फाइल अबाउट साइड, तो वहां पे वो एरर चला गया। नेक्स्ट हम लोग ने आउट डॉट प्रिंटलन में टेबल बॉर्डर बनाए, क्योंकि हम लोग क्विज जो दे रहे हैं आउटपुट में आप देख सकते हो, जो क्यूज बना रहे हैं नीचे वो टेबल बॉर्डर में, तो उसका बॉर्डर सेट कर रहे हैं और टेबल सेट कर रहे हैं, तो टेबल में दिया है, इसके लिए टेबल टैग लिया हुआ है। बॉर्डर दिस इज HTML। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्यूज नंबर इज 0, बट इट इज इंक्रीमेंट बाय 1। जब आपका डेटा आएगा रिजल्ट सेट से, वैसा ही वो इंक्रीमेंट बाय 1। तो आपका अगर 001 उधर लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट वन 002 आएगा, नेक्स्ट वन 003 आएगा, नेक्स्ट वन 004 आएगा, नेक्स्ट वन 005 आएगा। इट विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट सेट नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट रिकॉर्ड। So while result set next record, continue use number plus plus पहला, फिर get the string from first column, get the string from first column में क्या था वो आपको दिखाई देगा। second column में क्या था वो आएगा। this will continue till आपका next question। तो पहले इसमें क्विज नंबर आएगा, सेकेंड इसमें क्या आने वाला है आपका, सेकेंड इसमें आपका देखो क्विज नंबर, देन सॉरी क्विज 1 2 3 4 5, तो क्वेश्चंस नंबर, देन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 एंड देन आंसर तो आपको वहां पे दिखाई नहीं देगा, उसको सेट किया हुआ। तो यहाँ से क्विज नंबर से लेके यहाँ पे आपका ऑप्शन तक वहां पे सेट हो जाए। इज इट क्लियर? हेलो हेलो, उसको आपको टेबल में किस तरह दिया हुआ है, TRTD दिस, तो TRTD के अंदर कितने TD आए, 1 2 3 4 5, सॉरी पहले इसमें 2 ही आए, पहले TR में 2 ही आए, सॉरी सर। फर्स्ट अपॉन क्विज नंबर और क्वेश्चंस 1 and 2, ओके, क्विज नंबर एंड क्वेश्चंस, ओके। सेकेंड TR मतलब यहाँ से, सेकेंड TR में, सेकेंड TD में क्या आया, एक ऑप्शन बटन, ओके, जहाँ पे ऑप्शन रेडियो बटन करके दिखाई दे रहा है यहाँ पे, रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, और वहां पे उसका क्विज नंबर दिया 01 करके, इसका है, मतलब ये क्विज नंबर आया 1, ओके। देन आफ्टर दैट उन्होंने सेट कर दिया यहाँ रिजल्ट सेट स्ट्रिंग 3, मतलब यहाँ पे न्यू दिल्ली करके आया, दैट इज ऑप्शन 1। फिर बाद में TRTD क्लोज, बराबर है। सेकेंड TD देख सकते हो, सेकेंड TD क्या है, सेकेंड TD में आपका ऑप्शंस आ गया, रिजल्ट सेट स्ट्रिंग, मतलब अगर करेक्ट या इनकरेक्ट है वो बाजू में दिखाई देगा, वो यहाँ पे सेट होगा आंसर, ठीक है, वो अभी नहीं, उस डेटाबेस के हिसाब से। नाउ इसी तरह उन्होंने इनपुट टाइप रेडियो सेकेंड बटन, रेडियो थर्ड बटन, रेडियो फोर्थ बटन, ओके, that is 3 4 5 and 6, clear? now two curly bracket we have to close। Yes, यहाँ पे एक while loop close हो गया, अभी आपका try close हो गया, अभी बाकी क्या है, कैच का भी बाकी है ना, तो
कैच इज ए एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अगर एरर आता है तो हम लोग हाँ। क्या करेंगे, तो वो कैच में दे रहे हैं। और भी कुछ चीजें बाकी है वो हम लोग को करनी पड़ेंगी, वो दी नहीं है, करता हूँ। नेक्स्ट कैच एक्सेप्शन दिया, हमारा टेबल क्लोज ही नहीं किया। ये देखो यहाँ पे लास्ट में दिया, वो गलती से मेरा नीचे आ चुका है, वो आपको ऊपर लेना है। कहाँ पे, फॉर्म के अंदर, यहाँ out dot println table close, out dot println type reset button, out dot println submit button and form close। तो गलती से यहाँ पे पीडीएफ में रॉन्ग है, वो यहाँ पे आना चाहिए। इज इट क्लियर? हेलो हेलो सर। या सो आपका ये अभी हाँ, क्विज सर। क्विज रेडी हो गया। लेकिन क्विज रेडी होने के बाद आपको एक्शन रिजल्ट कहाँ से शो करने वाले? एक्शन शो रिजल्ट फाइल से आने वाले, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसलिए अनदर सर्वलेट फाइल, दिस इज अनदर सर्वलेट फाइल वी हैव टू क्रिएट। गो ऑन प्रोजेक्ट, राइट क्लिक ऑन द सोर्स पैकेज, न्यू सर्वलेट, और उधर आपके फाइल का नाम क्या आएगा, सॉरी राइट क्लिक न्यू सर्वलेट, और आपके फाइल का नाम आएगा शो रिजल्ट। नेक्स्ट ऐड टू डिस्क्रिप्टर, फिनिश, फाइन। यस सर। शो रिजल्ट में आप लोग का वापस वही चीजें आती हैं जो हम लोग ने किए थे कि ड्राइवर कनेक्टिविटी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और वो सारी चीजें आएगी और चेक कर लेते वहां पे क्या है। चलो ये शो रिजल्ट है। यहाँ पे शो रिजल्ट में आपको ड्राइवर कनेक्टिविटी पार्ट वापस आ गया, रिजल्ट सेट वापस आ गया, या काउंटिंग वापस आ गया, कौन सा करेक्ट आंसर है उसको काउंटिंग करना है, और फिर स्कोर का रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो इसकी कोडिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करना। I copy the try part and use it in the try। हो गया कॉपी, पर कुछ भी नहीं है, राइट ना। वापिस देखो इंपोर्ट फाइल, अरे ये आउट डॉट प्रिंटलन क्यों आया, ट्राई के अंदर, ओके फाइन, पेस्ट गया। नाउ यहाँ पे इंपोर्ट थ्रो जावा डॉट लैंग्वेज डॉट क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, यहाँ पे आ गया, दिखाई दिया। फिर नेक्स्ट कनेक्शन, import java.sql.connection, then import java.sql.driver manager, okay, then import java.sql.sql exception, ये यहाँ पे, ओके, ऊपर हेडर फाइल डिक्लेयर हो गए दोनों, और यहाँ पे एक्सेप्शन। नाउ स्टेटमेंट, import java.beans.state, ओके, import कास्टिंग के लिए पूछेगा तो कास्टिंग कर लें, यस कास्टिंग, या स्टेटमेंट कास्टिंग हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट से import java.sql.results गया। नाउ नेक्स्ट हो गया, वी सिलेक्ट आंसर फ्रॉम क्विज, ओ ठीक है। नाउ क्विज नंबर काउंट 0, क्वेश्चंस नंबर 0, व्हाइल रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, सेम आ गया। यहाँ से आपका अभी नया आ रहा है, काउंटिंग दिया है उसके हिसाब से हमारा स्कोर का काउंटिंग 0 में होगा। क्विज नंबर ऐड हो रहा है, पहले क्विज हमेशा देखो, इफ रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर फ्रॉम क्वेश्चंस नंबर, अगर आपने जो क्वेश्चंस नंबर पे क्लिक किया है और आपका स्ट्रिंग करेक्ट है तो आपको काउंटिंग में 1 प्लस होगा, मतलब करेक्ट आंसर 1, एल्स इनकरेक्ट आंसर बताएगा। इनकरेक्ट काउंटिंग नहीं हो रहा है, इनकरेक्ट के लिए भी काउंटिंग कर सकते थे, वो नहीं किया है, तो काउंट 1 देके काउंट 1 इनकरेक्ट काउंटिंग भी कर सकते। नेक्स्ट उसके बाद योर स्कोर, काउंट के अंदर जो स्कोर करेक्ट होगा वो स्कोर इधर दिखाए। ये कब तक होगा, जब तक रिजल्ट सेट आपका कंप्लीट होता नहीं है। गॉट इट, यस स्टूडेंट, क्लियर। चलो कंपाइल करते हैं, क्या एरर है वो देख लेते हैं और कंप्लीट करें। कुछ कैच एक्सेप्शन का एरर है। हेलो 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 हाँ सर, अभी हेलो हेलो, अभी यस हेलो हेलो, हाँ यस सर, आया सर। ओके फाइन। तो अभी इसके अंदर कैच एक्सेप्शन का जो एरर है वो भी हम लोग ले लेते हैं, कॉपी इन द फाइनली के पहले कैच एक्सेप्शन, अगर कुछ एरर आता है तो पता करने के लिए कैच एक्सेप्शन। नाउ राइट क्लिक एंड क्लीन एंड बिल्ड, जो भी एरर रहेगा वो देख लेंगे और पता कर लेंगे। कैन नॉट फाइंड द सिंबल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वीज, यहाँ पे रिजल्ट सेट का जो एरर आ रहा था ना वही आ रहा है एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, देख लेते हैं अभी पहले फाइल में, क्यूज सर्वलेट के फाइल। एग्जीक्यूट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्यूज, सिंबल वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है,
cannot find this symbol. रूट एडमिन, शो रिजल्ट में भी हम लोग को एडमिन लेना पड़ेगा, रूट की जगह यहाँ एडमिन लेना पड़ेगा। और ठीक है, फिर क्यूज सर्वलेट में यहाँ पे एरर आ रहा है ना, रिजल्ट सेट क्या है वो देख लेते हैं। Select execute query statement, select execute query, select star from query आया ना, बराबर है ना। clean compile again, वापिस आ गया नेटबीन्स। क्या बता रहा है वो, स्ट्रिंग मेथड्स एग्जीक्यूट क्वेरी स्ट्रिंग। हाँ तो रिजल्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही है ना, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। कनेक्टिविटी कास्टिंग करने का वो भी नहीं पूछा है, तो रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट है, सर्विस चालू है, चालू है। एग्जीक्यूट क्वेरी का एरर है, क्या है वो देखना है। ठीक है, ये काम करते हैं टाइप करके, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट आता है, एग्जीक्यूट क्या आता है, स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कीज। ठीक है, अभी देखते हैं सेमीकोलन। नया स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं है। एग्जीक्यूट दिया, सेमीकोलन दिया, फिर भी सेम। अभी ये एग्जीक्यूट का रिजल्ट सेट का क्या इश्यू है वो देखना है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ अभी, डोंट वरी। फाइनल में जाते हैं, इसके अंदर फाइनल में नहीं, चलो ये प्रैक्टिकल हो चुका है मेरा, तो मेरे पास उसका कोडिंग रहेगा। प्रैक्टिकल 3B चलोगा। सर्वलेट एडिट, क्या है उसके अंदर, या एग्जीक्यूट क्वेरी तो है, परफेक्टली तो है। तो फिर एरर क्यों आ रहा है, कोडिंग फाइल का सारा स्टेटमेंट ले लेते हैं। व्हाई इट इज एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है। हम्म
एग्जीक्यूट क्वेरी एरर, क्या बताया उसने? कैन नॉट इशू डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट विद एग्जीक्यूट क्वेरी. Yes, what does this mean? So do you have any access to MySQL other than in JDBC MySQL or command line? I have access to MySQL and in host requirements that MySQL is created. Okay, right. कैसे करना है? To manipulate, do you actually need to execute update rather than query? ठीक है, चलो. Execute update. वो भी नहीं आ रहा है, same error. Rather than execute it. So here an extract from the execute update Java docs which is already available. ये भी तो एरर ही आ रहा है execute update. कंपाइल करके देखते हैं. Statement dot execute execute ही आ रहा है, execute query तो है ही नहीं, dash वो भी execute को भी एरर आ रहा है. देखते हैं इसमें अंदर डायरेक्टली क्या आता है. same execute select उसके अंदर सबसे पहले रखते हैं execute update, वो भी नहीं आ रहा. execute कंपाइल करते हैं, राइट क्लिक कंपाइल. एग्जीक्यूट में भी एरर है. अभी अपडेट में भी एरर है. तो कहाँ कर रहा है? एग्जीक्यूट क्वेरी होता है, एग्जीक्यूट अपडेट होता है और एग्जीक्यूट होता है. व्हाई इट इज लाइक दैट? सिलेक्ट, दैट इज एग्जीक्यूट. दिस मेथड यूज्ड टू एग्जीक्यूट द data from the database, right? It is, so this method is to only select. किया हुआ है ना, वैसे ही तो लिखा हुआ है. If you are using Spring Boot, metadata modifying notifications query value update and end. Don't have to do it to Spring. ठीक है, @modifying query करके देते हैं, क्या होता है. अभी हम लोग का पार्ट में एग्जीक्यूट अपडेट पहले भी हुआ था ना, हम लोग ने जेडीबीसी में किया था, तभी था. अभी क्या प्रॉब्लम है इसका एग्जीक्यूट क्वेरी में? अच्छा हाँ बराबर. यस यस स्टूडेंट, टेल मी दैट अपडेट फाइल हम लोग ने वो लाइब्रेरीज नहीं लिया है. कौन सा लाइब्रेरीज मालूम है? MySQL जार फाइल. आई फॉरगॉट. ऐड जार फाइल होती है ना MySQL की. हाँ सर. हाँ, तो किसी ने बोला भी नहीं. डी ड्राइव में कॉलेज सॉफ्ट के अंदर MySQL में this is your jar file. You have to enter. Now you have to compile. Now you have to run. Start queues. अभी क्या एरर है? वही है एक्सेप्शनल एरर. क्या बता रहा है? रन टाइम सोर्स कोड ऑन रिपोर्टेड एक्सेप्शनल जावा लैंग्वेज डॉट एक्सेप्शन आर थ्रोन 3 पॉइंट. कंपाइल करते हैं. अभी ये शो रिजल्ट में भी एग्जीक्यूट क्वेरी लिखते हैं और यहाँ पे भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वीज लिखते हैं. यहाँ पे भी स्टार फ्रॉम क्वीज. राइट, नाउ कंपाइल इट क्लीन एंड बिल्ड. फिर भी वो क्वीज के इधर ही एरर आ रहा है ना. सिंबल मेथड एग्जीक्यूट क्वेरी लोकेशन वेरिएबल टाइप स्टेटमेंट. यहाँ पे क्विज पे क्लिक करने के बाद क्विज सर्वलेट में जाएगा. क्विज सर्वलेट में एरर का यहाँ पे ही उसका एरर अटका है. रिमूव
result set res is equal to statement execute query. Yes, then why it is that execute is select star from. चलो स्टार की जगह अगर हम लोगों ने लिखा व्हाट इज द क्यूज नंबर ऑप्शन 1, देखो क्यूज नंबर लिख के देखते, वो भी नहीं आ रहा है। सो स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आ रहा है, एग्जीक्यूट अपडेट या एग्जीक्यूट क्वेरी, दैट इज द प्रॉब्लम। अपडेट वो भी नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसका, हाउ टू सॉल्व। सॉल्यूशन देगा ना, बराबर दिया है, एग्जीक्यूट क्वेरी इंसर्ट दैट इज वैल्यू गेट स्टॉक। एक तो ये इस तरह आना चाहिए, रिजल्ट सेट की जगह एग्जीक्यूट अपडेट। अगर मैंने रिजल्ट सेट नहीं लिखा, डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखा, तो क्या होता है वो देखिए। बट रिजल्ट सेट के बिना हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्ड दिखा नहीं सकते। ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो अपन अभी गूगल में जेडीबीसी का कनेक्टिविटी का प्रोग्राम देखते हैं। जेडीबीसी इन नेटबीन्स with MySQL, here execute query example। ठीक है, अभी देखते हैं क्या या कनेक्टिविटी में नेटबीन्स ट्यूटोरियल जाते हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, देख लेते हैं। तो ये बहुत बार किया हुआ, एक बार दो बार नहीं। ये कनेक्टिविटी कैसे करना है, क्या टेबल बनाया, वेल कनेक्टिविटी किया, रनिंग एसक्यूएल स्क्रिप्ट, ओके ये तो पहला। तो MySQL के साथ में हुआ, इसके आगे का एग्जाम्पल क्या करें, इस तरह लिख के फायदा नहीं है। एग्जीक्यूट क्वेरी जावा कमांड इन नेटबीन्स, या सो कनेक्ट कॉन्फ़िगर दिस रजिस्टरिंग, वो सब किया है रे बाबा। जेडीबीसी नर्सर ये सब हो चुका है, आगे क्यों नहीं जा रहा। ये टेबल बनाया, टेबल कनेक्ट किया, वो सब हो चुका है रे। मुझे गलत, मुझे कोडिंग नहीं दिखा रहा। हाँ, एग्जीक्यूट क्वेरी कोड इन जावा, ये देखते हैं प्रोसेसिंग स्टेट। ओके नाउ रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट, देखो ना वही है क्वेरी, कमांड है यार, कमांड रॉन्ग कैसे हो सकता। सिलेक्ट दिस स्टार फ्रॉम कॉपी एंड क्वेरी। अच्छा ओके, मुझे लगता है वो स्टार की जगह, लेकिन मैंने स्टार की जगह मैंने क्यू नंबर भी दिया ना, तो अभी हम लोग सर्विसेज में पूरे नाम लिख लेते, क्या क्या चाहिए उसके। सिलेक्ट स्टार की जगह क्विज नंबर क्यूएनओ कॉमा, फिर क्वेश्चंस कॉमा, फिर OP1 कॉमा, OP2 कॉमा, OP3 कॉमा, OP4 कॉमा, आंसर। ठीक है, अभी इधर एग्जीक्यूट क्वेरी लिख के देखते, अभी भी वही एरर है, कंपाइल करो। क्या एरर है रिजल्ट से, एरर में
एग्जीक्यूट क्वेरी कमांड ले ही नहीं रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? एग्जीक्यूट भी नहीं ले रहा है, एग्जीक्यूट अपडेट भी नहीं ले रहा है। चलो यहाँ पे डॉट डाल के भी देखता हूँ, डॉट एग्जीक्यूट इज अवेलेबल, एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं है बट एग्जीक्यूट अवेलेबल है, तो मैं एग्जीक्यूट भी ले रहा हूँ ना, तो भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, कास्टिंग भी करके देख लेता हूँ, अगर उसका एरर है तो रिजल्ट सेट। क्या प्रॉब्लम है बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी चीजें देख ली है। दिस इज द कमांड फॉर एग्जीक्यूट क्वेरी, returns one result set of। हेलो, हाँ देवंशु। 10:15 को, यस। हाँ 11, मतलब उसका जो टाइम रहेगा उसके हिसाब से पता नहीं। हाँ 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 हाँ। लेकिन उसका डेटा स्टोर हुआ रहेगा क्या अगर लॉग आउट हुआ? ओके, तो ठीक है, मैंने चालू कर दिया है तो। नहीं नहीं, करो ना, करो ना, खत्म करो ना, क्यों? हाँ ठीक है, चलो चालू किया हुआ है, करो। हेलो, हाँ हेलो, हाँ स्टूडेंट, जो एरर है देखना पड़ेगा, एग्जीक्यूट क्यों नहीं है। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू दैट पीडीएफ जेडीबीसी। ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम रन है, खाली एग्जीक्यूट क्वेरी का जो एरर है वो यहाँ पे भी हमारा कमांड बराबर है, दैट इज रिटर्न द वन रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। वी आर रिटर्न ऑलरेडी, थिंग्स आर प्रॉपर। देखो यहाँ पे भी वही किया, रिजल्ट सेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्वेरी, हमने क्वेरी लिखा है, उसको रिजल्ट स्टेटमेंट दिखाना है, तो दैट्स ऑल। तो लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो क्या समथिंग इट इज एरर विद द डॉक्यूमेंट, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एरर यहाँ पे वही दे रहा है, जावा बीन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, जावा एसक्यूएल स्टेटमेंट नॉट फाउंड, बराबर ना? तो इसमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्यों नहीं है वो चेक करना है, या अदरवाइज नेटबीन्स मुझे 8 इंस्टॉल करके ये सब चीजें चालू करनी पड़ेगी, अपलोड फाइल लोड, क्योंकि नेटबीन्स 8 में ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके ओके सर। ओके फाइन, चलो ओके, एनीवे बाय, लीव बाय द, सर। बाय, Thank you, sir. थैंक यू सर। Okay, thank you, sir. थैंक यू, लीव द बेटा।